Hello everyone, welcome back to my channel Biological Domain. As we know that our skeletal system is divided into two parts, that is axial skeleton and appendicular skeleton. There are 80 bones in axial and 126 bones in appendicular. We have already discussed about axial skeleton and their related bones through different tricks. In today we will only discuss appendicular bones, which are 126 in number. Appendicular bones are the bones which are related to movement of the limbs. So, in appendicular bones, it is further divided into limbs and girdles. Limbs are of two types, that is hand and leg, and which join our hand and leg to axial skeleton, it is known as girdles. So, girdles is of two types, pectoral and pelvic. Pectoral girdles are the girdles which join our hand to the upper parts, and the pelvic girdles are the girdles which join our leg to the lower parts. The example of pectoral girdles are shoulder bone, collar bone, and the pelvic girdles example are coccygeal bone. So, let us start one by one. We start with hand. We know we have two hands, so in one hand there are 30 bones. So, in total that is 60 bones in our hand. So, start with their bones name. Four limbs. In four limbs there are three bones, that is humerus, radius and ulna. Humerus bones are present in our upper arm, which are 1 in number. So, in total it is 1 into 2, 2. Radius, it is present in lower arm, that is also in 1 number. So, in total that is 1 into 2, 2, and ulna is also present behind radius, that is 1 into 2. So, it is 2. So, total 4 limbs bones are 6. Carpal, which is also known as wrist bone, kalai bone, it is 8 in number. So, in total that is 8 into 2, 16 in number. Metacarpals, which is known as palm bones, means hatheli ka bone, that is 5 in number. So, in total 10 bones. Phalanges, which is known as digit in our finger, that is 14. So, in total it is 14 into 2, 28 in numbers. So, identify that bones. This bone is known as radius, which join with thumb portion. This is radius, and this is radius, and this is ulna, and in upper there are humerus bone, and this is our wrist bone. This is our wrist bone, and it is 8 in number. 8, and wrist bone or carpus, it is 8 in number, and it is metacarpus 1, 2, 3, 4 and 5. So, 1, 2, 3, 4 and 5. So, it is 5 in number, so in total 10. And this is our digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, because in thumb there are 2 digits are present. So, in total it is 14 in one hand. So, in both hand there are 28 in number. Understood? And learn with trick. Humor is ready ultimately for seat in compact motor car and fly. ह्यूमर नाम का एक लड़का है जो कि पहले रेडी तो हो नहीं रहा था वो मोटर कार में बैठने के लिए, लेकिन उसको रेडी किया गया. तो ह्यूमर इज रेडी अल्टीमेटली फॉर सीट इन कॉम्पैक्ट मोटर कार एंड फ्लाई. तो ह्यूमर से क्या हुआ? ह्यूमरस बोन. रेडी से क्या हुआ? रेडियस बोन. अल्टीमेटली से क्या हुआ? अल्ना बोन. कॉम्पैक्ट से क्या हुआ? कार्पल्स बोन. मोटर कार से क्या हुआ? मेटाकार्पल्स बोन. एंड फ्लाई से फैलेंजेज. सो इसका ट्रिक क्या है? ह्यूमर इज रेडी अल्टीमेटली फॉर सीट इन कॉम्पैक्ट मोटर कार एंड फ्लाई. अब इसके नंबर को कैसे याद करेंगे? 2, 2, 2, 16, 10, 8, 28.
ये आपका ट्रिक हुआ हैंड बोन्स का। अब पेक्टोरल गर्डल्स जो कि हैंड बोन को एक्सियल स्केलेटल से जोड़ते हैं, जो कि 4 इन नंबर हैं। तो वो कौन से बोन्स हैं? 2 बोन हैं, कॉलर बोन और शोल्डर बोन। तो कॉलर बोन को क्लैविकल बोलते हैं और शोल्डर बोन को स्कैपुला बोलते हैं। कॉलर बोन आर 2 इन नंबर, इन वन आर 1, सो इन टोटल 2। शोल्डर बोन इज ऑल्सो डेट लाइक 1 into 2 इन नंबर। सो इसका ट्रिक क्या है? कॉलर ऑफ शर्ट ऑन शोल्डर। शर्ट का जो कॉलर है वो शोल्डर पर है, तो कॉलर से कॉलर बोन और शोल्डर से शोल्डर बोन, तो 2 कॉलर 2 शोल्डर पे हैं। इसका ट्रिक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका क्लैविकल बोन है जो कि कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका स्कैपुला है जो शोल्डर बोन है, और ह्यूमरस ये अपर आर्म में जो बोन्स प्रेजेंट है। ये रेडियस हो गया जो कि थंब के पोर्शन से जोड़ता है, और ये अल्ना उसके बिहाइंड जो स्ट्रक्चर है। ये आपका कार्पस है जो कि 18 नंबर है, तो इन टोटल 16 हुआ। मेटाकार्पस आपका जो 5 फिंगर्स है, मेटाकार्पस हथेली, और फैलेंजेस जो आपके डिजिट्स हैं वो 14 है। ये स्ट्रक्चर हो गया अपर आर्म का। अब हम लोग लोअर लिम्स के बारे में देखते हैं। तो लोअर लिम्स में पहले देखते हैं पेल्विक गर्डल, वहाँ 1 बोन ही प्रेजेंट होता है, तो इन टोटल 2 बोन्स होंगे। तो वो बोन्स का क्या नाम है? कॉक्सियल बोन। कॉक्सियल बोन जो हैं 3 बोन के फ्यूजन से बनते हैं। कौन से बोन? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। IIP फॉर्म कॉक्सियल बोन। सो इसका तो आप ऐसे भी याद ही कर सकते हैं, 1 into 2 2 बोन्स। अब हम लोग देखते हैं थाई बोन जो होता है जिसको फीमर बोलते हैं, वो 1 होता है, जिसको जो कि लॉन्गेस्ट बोन होता है हमारे शरीर का, 1 into 2 2 इन नंबर। टीबिया 1 into 2 तो 2 इन नंबर। और आपका फीबुला जो है 1 into 2 2 इन नंबर। फीबुला भी आपका क्या है? आपके पैर के अंगूठे से आपके हड्डी को जोड़ता है, वो फीबुला हुआ, और टीबिया उसके बगल वाला हड्डी। टार्सल्स जो है, जैसे हमारे हाथ में कार्पल्स था, इसमें टार्सल था, तो 14। तो ये आपका कैसे हुआ? 7 into 2, जिसको एंकल बोन्स भी कहते हैं। मेटाटार्सल 10, तो 5 into 2 10। फैलेंजेस जो डिजिट्स हमारे हाथों में थे वैसे ही डिजिट हमारे पैरों में भी होंगे, तो 14 into 2 28। और पैटिला ये एक नया वर्ड है जिसको नी कैप बोलते हैं, तो ये भी 2 इन नंबर, 1 in 1 लेग एंड 1 in 1, सो टोटल 2। अब इसका ट्रिक क्या है वो देखते हैं। फेम पाती टिया फिल्म टार्जन के फेम पाती टिया, एक टिया नाम की लड़की है जो कि फिल्म टार्जन में काम की है, तो उसको बहुत फेम मिला, बहुत प्रसिद्धि मिला। तो फेम पाती टिया फिल्म टार्जन के मोटर कार में फंस गई। जो टिया नाम की लड़की थी वो टार्जन के मोटर कार में फंस गई। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? फेम से फीमर, पाती से पटेला, टिया से टिबिया, फिल्म से फिबुला, टार्जन से टार्सस, मोटर कार से मेटाटार्सस, और फर्स्ट से फैलेंजेस। सो इसका नंबर कितना है? 2 2 2 2। मिस यहाँ तक आपका फीमर, पैटेला, टिबिया, फिबुला 2 है, और टार्सल्स आपका कितना है? 14 है, और मेटाटार्सल 10 है, और फैलेंजेस 28 है। सो ये आपका ट्रिक था एपेंडिकुलर बोन्स का। इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। ये कॉक्सियल बोन है जो कि इन तीनों बोन्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इन तीनों बोन के फ्यूजन से बना है कॉक्सियल बोन, जिसको पेल्विक गर्डल बोलते हैं। ये फीमर हुआ, पैटिला जो कि नी कैप है, ये फीबुला जो कि आपके अंगूठे के साइड का है, फिर टिबिया हुआ, टार्सल्स,
मेटाटार्सल और फैलेंजेज। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये ट्रिक समझ में आया हो। थैंक यू।